یہ حدیث قدسی کچھ اس طرح سے ہے جس میں فرمایا جا رہا ہے، رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ من طلبنی، مطلب کہ جس نے مجھے ڈھونڈا، طلب کیا، ومن وجدنی عرفنی، اور جس نے مجھے پا لیا، عرفنی، اس نے مجھے جان لیا۔ اور پھر آگے فرمایا ومن عرفنی احبنی، اور جس نے مجھے جان لیا اس نے مجھ سے محبت کی۔ سبحان اللہ، یہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے حدیث قدسی میں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ ومن احبنی اسکنی، مطلب یہ کہ اور جس نے مجھ سے محبت کر لی وہ میرے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ یہ اللہ رب العزت حدیث قدسی میں فرما رہا ہے۔ اب یہ ایک طرح کا سیڑھی ہے، لیڈر ہے، کہ پہلے آپ میں اللہ تعالیٰ کا چاہت جاگے، طلب آئے، پھر اللہ مل جائے، اور جب اللہ مل جائے تو پھر آپ اللہ کو پہچانیں، اور جب اللہ کو آپ پہچان لیں تو پھر آپ کو اللہ سے محبت ہو جائے، اور جب اللہ سے آپ کو محبت ہو جائے تو پھر اللہ آپ کو دیدار کی طرف لائے، اور اللہ کی دیدار کرنے کے بعد پھر آپ کو عشق ہو جائے۔ تو یوں اس محبت کے بعد عشق آتا ہے، محبت کے بعد پھر یوں عشق آتا ہے، دیدار کے بعد ہی عشق آ جاتا ہے۔ ومن احبنی، یعنی کہ جس کو مجھ سے محبت ہو گئی، اشکنی، یعنی کہ اسے مجھ سے پھر عشق ہو گیا، ومن اشکنی، اور جس کو مجھ سے عشق ہو گیا، قتل تو ہو، اور پھر میں اس کو قتل کر دیتا ہوں۔ یہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ اور آگے فرماتا ہے کہ ومن قتل تو ہو، اور پھر میں جس کو قتل کر دیتا ہوں تو پھر اس کے لیے مجھ پر دیت لازم ہو گئی۔ یہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اس کے لیے مجھ پر دیت لازم ہو گئی۔ اور دیت کا مطلب ہوتا ہے خون بہا۔ خون بہا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خون بہا یوں ہوتا ہے کہ جیسے مان کے چلو کہ آپ کے ہاتھوں سے کسی کے قتل ہو گئے، تو خون بہا کے بدلے وہ آپ سے کوئی قیمتی شے، کوئی قیمتی وستو آپ سے مانگے، تو اس کے جو معاوضے میں آپ دیں گے تو وہ کہلائے گی دیت۔ تو اب آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ جو مجھ سے عشق کرتا ہے تو میں اسے قتل کر دیتا ہوں، اور جب میں قتل کر دیتا ہوں تو اب مجھ پر اس کی دیت لازم ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے اس کو مار دیا ہے، اب اس کی دیت مجھ پر لازم ہے، خون بہا اس کی جو مجھ پر ہے وہ لازم ہے۔ کہ اس کا خون بہا یوں ہوتا ہے کہ انا دیتا ہوں، کہ مطلب میں نے اس کو مارا ہے، اب میں اس کا ہو جاتا ہوں۔ یہ ہے اللہ کی جانب سے دیت، اس کا خون بہا مجھ پر لازم ہو گیا، اللہ فرما رہا ہے، تو اب میں اس کے بدلے میں اس کا ہو جاتا ہوں۔ یہ اللہ فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہ اللہ رب العزت نے یہ ایک راستہ، ایک سیڑھی بتایا، دکھایا ہے، کس طرح سے محبت کے بعد عشق، اور کس طرح وہ اپنے بندوں کا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ اچھا، اب ہم لوگ جو سمجھتے ہیں کہ بھائی ہاں جی ہمیں خدا کی طلب ہے، اللہ کی طلب ہے، اللہ کی قرب کی چاہت ہے۔ ایک عام لوگ ہیں جو زبانی بھاشا میں کہہ دیتے کہ ہاں بھائی ہم کو خدا کا طلب ہے، خدا کا راستہ پہ چلنا ہے، خدا کو پانا ہے، ایک زبانی بھاشا میں بھی کہہ دیتے ہیں یہ بات۔
जवानी अल्फाज ये बयान कर देते हैं करने वाले। कोई अगर ये बात कहता है कि हाँ भाई मुझे अल्लाह की तलब है, मुझे अल्लाह चाहिए, ये तलब नहीं होती है। उस रब की तलब करना, उस जात की चाहत करना, वो ऐसा है कि हाँ भाई उसे ढूंढा, हमने उसे ढूंढा, हमने उसे चाहा, तो तमाम चीज़ की जो तलब है, जो चाहत है, उसकी राह में खर्च करना, तो मैंने खर्च कर दिया कि हाँ भाई हमने दिल खोल कर खर्च कर दिया, क्योंकि हमें उसकी तलब है, उसकी तलाश है। ये होता है तलब। तो इसी तरह से बमन बजादनी अरफनी, अल्लाह फरमाता है कि जब मैं मिल जाता हूँ उसको, फिर वो जानता है कि मैं कौन हूँ, फिर वो जानता है कि मैं कौन हूँ। तो मालूम ये हुआ कि अल्लाह को पाए बगैर आप अल्लाह को जान नहीं सकते। अब इसका दर हकीकत सीधी लफ्ज़ों में जो तर्जुमा है वो ये है, जो अल्लाह फरमाता है कि जिसने मुझे तलब किया उसने मुझे पा लिया, और जिसने मुझे पा लिया दर हकीकत उसने मुझे पहचान लिया, और जिसने मुझे पहचान लिया वो मेरा मुहिब बन गया। ये है हकीकी तर्जुमा। और जो मेरा मुहिब बन गया वो मेरा आशिक बन गया, जो मेरा मुहिब बन गया वो मेरा आशिक बन गया। और जो मेरा आशिक हो जाता है तो मैं उसे कत्ल कर देता हूँ, ये अल्लाह फरमा रहा है हदीस कुदसी में। और मैं जिसे कत्ल कर देता हूँ उसकी दैयत यानी कि उसकी खून बहा मुझ पर लाजिम हो जाती है, ये अल्लाह फरमा रहा है। और आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि मैं वो दैयत इस तरह अदा करता हूँ कि मैं खुद उसका हो जाता हूँ। मैं वो दैयत, उसका खून बहा इस तरह अदा करता हूँ कि मैं खुद उसका हो जाता हूँ, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है। ये हदीस कुदसी है, मैं अपनी तरफ से मैं नहीं बता रहा हूँ। ये हदीस कुदसी का जो फरमान आई है, हदीस कुदसी में जो रब की फरमान आई है, वो मैं आपको बता रहा हूँ और वो मैं आपको सुना रहा हूँ। एक हज़रत सुल्तान वाहू रहमतुल्लाह अलैह की किताबों में लिखा है कि फ़कीर जो है फ़क्र में कामिल हो जाता है, फिर ना वो इंसान का मोहताज रहता है और ना वो अल्लाह का मोहताज रहता है। ये हज़रत सखी सुल्तान वाहू रहमतुल्लाह अलैह की किताब में लिखा हुआ है, और आप देख सकते हैं उसमें लिखा हुआ है कि फ़कीर जब फ़क्र में कामिल हो जाता है तो ना वो इंसान किसी इंसान का मोहताज होता है और ना वो अल्लाह का मोहताज होता है। ये हज़रत सुल्तान वाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं। तो कुर्बान जाइए सरकार गौहर शाही पे, कितने खूबसूरती से समझाया, एक्सप्लेन दिया। सरकार गौहर शाही से पूछा गया, सैयदी यूनुस अल गौहर ने सरकार गौहर शाही से पूछा कि सरकार अल्लाह का भी मोहताज नहीं रहता है फिर वो बंदा? तब सरकार गौहर शाही फरमाते हैं कि भाई वो अल्लाह से जुदा होगा तब तो अल्लाह का मोहताज होगा ना, वो अल्लाह से जुदा कहाँ होता है। मतलब सीधी लफ्ज़ों में सरकार गौहर शाही ने फरमाया कि अल्लाह उससे जुदा होगा तब ना वो मोहताज होगा, अल्लाह उससे जुदा ही नहीं होता है तो फिर वो मोहताज क्यों होगा। क्या खूबसूरत अंदाज में सरकार गौहर शाही ने इसका जवाब दिया, सुभान अल्लाह। तो कहते हैं कि सरकार गौहर शाही को आप अच्छी तरह से समझे नहीं। जो लोग उनके ऊपर जो आवाज़ें उठाते हैं, फतवे करते हैं और उनके प्रति बदगुमानी पालते हैं, वो लोग ये बात जान लें कि सरकार गौहर शाही को अभी पूरी तौर से समझा नहीं है, सरकार गौहर शाही की हकीकत जाना नहीं है। हकीकत जानिए, फिर समझ में आएगा कि सरकार गौहर शाही क्या है और कैसी उनकी तालीम है, वो क्या समझा रहे हैं। और आप अपने अंदर कहीं सुनी बातों को लेकर उनके प्रति बदगुमानी पाले हुए हैं, तो आप खुद तहकीक करें और समझें कि वो क्या है, उनकी तालीमात क्या है और वो कौन सा रास्ता दिखा रहे हैं। तो कहना यह है कि अल्लाह की मोहताजगी तो उस वक़्त है जब तू और है और रब और है। मोहताजगी तो उस वक़्त तक है ना कि तू और है और रब और है, उस वक़्त तक मोहताजगी है। जब तू और वो रब मिल गए तो फिर अब मोहताजगी कहाँ है, फिर मोहताजगी ख़त्म हो गई ना। आसान लफ्ज़ों से अगर समझा जाए तो ये इश्क है क्या। अभी तो तू सिर्फ एक आम इंसान है,
तेरे अंदर रूहें हैं, लताइफ है, एक नफ्स है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुझे अपनी सूरत पर बनाया, यानी कि आदम को अपनी सूरत पर तख्लीक किया है, बनाया है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं, बल्कि ये हदीस जिब्राइल है, हदीस कुदसी है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है। तो अल्लाह ताला ने तुझे अपनी सूरत दी है, अपनी सूरत पे बनाया है, और ताकि इन सूरत के अंदर तू रब की सीरत लाए। अल्लाह तबारक व ताला ने तुझे अपनी सूरत पे तख्लीक की है, तुझे अपनी सूरत दी है, ताकि तू इन सूरत के अंदर रब की सीरत भी लाए, वरना तू काफिर है। इन सूरत के अंदर रब की सीरत भी लाए, और नहीं ला सकता तो वरना तू काफिर है। और ये हदीस है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि खलक़तुल आदम अला सूरती, कि आदम को अपनी सूरत पर बनाया। और क्यों बनाया अपनी सूरत पर? अल्लाह तबारक व ताला ने क्यों बनाया आदम को अपनी सूरत पर, हमें आपको अपनी सूरत पर क्यों बनाया? ताकि इन सूरत के अंदर रब की सीरत लेकर आ सके, रब की जो सीरत है वो सीरत भी लाए, इसलिए